Hello everyone, welcome to Bright Future. I am Payal and I study in class 10th. Today we are going to complete exercise 2.1 and 2.2. So let's start with the video. First we will start exercise 2.1. Let's read the question. The graph of a y is equal to p of x are given in figure 2.10 below. For some polynomials p of x, find the number of zeros of p of x in each case. हमें इधर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताना है, हमें ये ग्राफ्स गिवन है. हमने इसकी प्रैक्टिस इंट्रोडक्शन वीडियो में ही की है. So we can solve this easily. Let's see first question. See here, this is the graph. Now how many zeros will be there? This graph cut x-axis at, does this graph cut x-axis at any point? No, this graph does not cut x-axis at any point. So if the graph is not cutting the x-axis at any point, then it will have no zero. So we will write here, it has no zeros, no zero. Now next is second example. Here given graph cut x-axis at one point. See here, this is x-axis and it is this graph cut x-axis at one point. So therefore this graph shows p of x has 1 0. इसलिए ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इसको 1 0 है. Now let's see third example. Here the given graph cut x-axis at 3.1, 2 and 3. So therefore this graph shows p of x has how many zeros? 3 zeros, because this graph cut x-axis at 3 points. So there will be 3 zeros. Here the given graph cut x-axis at 2 points. So it will have, this graph has 2 zeros. Here 1, 2, 3, 4. This graph cut x-axis at 4 points, so it will have 4 zeros. And this graph will have how many zeros? 1, 2 and 3. This graph cuts x-axis at 3 points, so it will have 3 zeros. Here we are completed with exercise 2.1. In this there was only one question. So I hope you have understand this first question of exercise 2.1. Now before starting exercise 2.2, we will see some basic things which is required in exercise 2.2, so that we will be able to solve exercise 2.2 neatly. Now how to find zeros of quadratic equation. Till now we have seen how to find the zeros of linear equation. Now we will see how to find the zeros of quadratic equation. We know that the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. Now to find the zeros of this quadratic equation, we will apply the method of splitting middle term. Which method? See, we will write here by splitting middle term method. You have understand now this, that here degree is 2, so this is quadratic equation. Now by splitting middle term method we will find zeros of quadratic equation. Now this is quadratic equation, so it will have 2 zeros. Okay, any quadratic equation will have 2 zeros. So first of all we will find its zeros by splitting middle term method. Now how to do this? See, here is 2 and here is 6. We will first multiply this both numbers. Here 2 6 are how many? 2 6 are 12, and
हमको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से -8 आता हो। क्या बोली मैं कि पहले नंबर और लास्ट के नंबर की मल्टीप्लिकेशन करना है। जो नंबर आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 6 12 आया है, तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से हमें मिलता है ये मिडिल वाला आंसर, जैसे कि -8। सो विच नंबर वी विल टेक? वी नो दैट 6 2 12, ओके, 6 2 12। और हमें ये भी पता है कि 6 में 2 ऐड कर देने से आता है आंसर 8। पर हमें सिर्फ 8 चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए -8। तो कैसे आएगा? हम इधर -6 और -2 लगा देंगे। माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 8, और इधर बिगर नंबर साइन -8 आ रहा है। और मल्टीप्लिकेशन में भी देखेंगे तो 6 2 12 और माइनस माइनस प्लस। मल्टीप्लिकेशन में बिगर नंबर के साइन नहीं लगते, अगर सेम होगा तो। माइनस माइनस डायरेक्टली प्लस होता है, तो इधर कोई भी साइन नहीं लगेगा। ठीक है, हमें कौन से दो फैक्टर्स मिले? -6 और -2। सो वी विल पुट हियर 2x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से सी दिस 2, फ्रॉम दिस 2 वी हैव टू टेक कॉमन। Here, which number is common? 2x and 2x? Yes, 2x is common, so we will take it outside. And in bracket, what will remain? Here 2x, but we need 2x². So 2x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 2x²। 2x into x 2x² माइनस इधर 2x तो ऑलरेडी है, तो इधर हम डायरेक्टली 1 पुट करेंगे। देखो 2x को अगर हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 2x into x 2x² मिलेगा, और 2x को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिलेगा 2x। ठीक है, आंसर सेम रहना चाहिए, सिर्फ हमें उसमें से कॉमन निकाल के एक्सपांड करना है। सेम हियर इन ब्रैकेट वी हैव रिटन x - 1, सेम वी विल राइट हियर ऑल्सो x - 1। अब इधर ऐसा नंबर चाहिए कि ये आंसर आना चाहिए। सी इधर x है, इधर x है, तो रह गया कौन? -6 इंटू x -6x, और -6 को अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 6 1 6, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इधर से कौन सा फैक्टर निकाला है? अब सी x - 1 x - 1, और कौन सा है? 2x - 6 2x - 6, ये दो फैक्टर्स निकाले। अब इधर हम दोनों को अलग अलग से इक्वल टू 0 करेंगे। x - 1 इक्वल्स टू 0, इधर -1 इधर जाके होगा +1, जिसकी वैल्यू आई 1। इधर भी 2x - 6 इधर जाके होगा +6, और x इज इक्वल टू इधर 2 मल्टीप्लाई इधर जाके होगा डिवाइड। 2 1 2 2 3 6, x की वैल्यू क्या आई? 3। See now, therefore what we will write? Therefore x is equal to 1 and x is equal to 3 are the zeros of given polynomial. I hope you have understand how to find zeros of quadratic equation by splitting middle term method. Now we will see the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. See, first relationship is sum of zeros is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x²। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है ना? क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सम ऑफ जीरोज मतलब हमने ऐसे ऊपर फाइंड आउट किए थे ना, ये दो जीरोज 1 और 3, ऐसे ये क्या है? जीरोज। नाउ सम ऑफ जीरोज तो कौन से भी हो सकते हैं, इसलिए हम जीरोज को हम इधर डिनोट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। इसलिए सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा।
इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट, इधर एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो है बी, क्या है बी, बी है, पर इधर क्या लगाना है माइनस, इसलिए माइनस बी अपॉन ए अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, इसलिए नीचे आएगा माइनस बी अपॉन ए। सेम हियर ऑल्सो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, कौन सी कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, अकेला सी, इधर सी है तो कांस्टेंट टर्म इधर सी है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों भी क्या है इम्पोर्टेंट है। Now we will start exercise 2.2. Let's read the first question. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. हमें quadratic polynomial के zeros find out करने हैं और उसका जो relationship है वो भी verify करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। पहले इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, फिर इसके हमें पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं। मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फाइंड करते हैं। सो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, कैसी होती है वो मेथड मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि x से 8 को मल्टीप्लाई, मतलब इधर x नहीं, इधर नंबर कुछ भी नहीं है तो इधर 1 होगा। सो 1 इंटू 8 8, और माइनस साइन भी है तो माइनस 8। अब 8 के कौन से दो फैक्टर्स निकलेंगे, 4 और 2, 4 2 जार 8, और इसकी प्लस माइनस करने से हमें 2 मिलना चाहिए। तो अगर 4 माइनस 2 किया तो आंसर 2 आता है, सो इसकी माइनस करना है, पर हमें माइनस साइन चाहिए इधर, तो बिगर नंबर साइन -4 रखेंगे। देखो माइनस प्लस माइनस, 4 माइनस 2 2, और बिगर नंबर साइन माइनस आ रहा है -2, और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी -8 आ रही है, 4 2 जार 8 और माइनस, तो हमें ये दो फैक्टर मिल गए। तो वी विल पुट दिस हियर एक्स स्क्वायर, और इधर माइनस 2x के जगह क्या लिखना है, ये माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स एक्स, तो एक्स एक एक्स बाहर निकालेंगे, इधर एक एक्स बाहर निकाला है, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर निकाला है तो अंदर रहेगा एक एक्स। देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस इधर का एक्स भी बाहर निकाला है तो इधर क्या रहेगा सिर्फ 4, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 4 माइनस 4x, इधर x माइनस 4 मिला है ब्रैकेट में, इधर भी x माइनस 4 ही लिखेंगे। अब x इधर बाहर निकाला है तो इधर क्या रहेगा प्लस 2, 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 2 4 जार 8 आ रहा है। आंसर सेम रहना चाहिए, सिर्फ इसको इसमें से कॉमन निकालना है। तो इधर दो फैक्टर्स कौन से मिले, x प्लस 2, x प्लस 2, इधर का x और इधर का प्लस 2, और ब्रैकेट में का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर देंगे, प्लस 2 इधर जाके -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई -2, और इधर x माइनस 4 को भी 0 से इक्वेट कर देंगे तो -4 इधर जाके +4 बनेगा, तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। इसलिए x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4 आर द zeros of p of x. So zeros are -2 and 4, ये दो ज़ीरो आए हैं। अब इसका हमें क्वेश्चन में वेरिफिकेशन भी बताना है, तो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में दो ज़ीरोज़ को हम अल्फ़ा और बीटा से इक्वेट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू देंगे -2 और बीटा की वैल्यू देंगे 4। ठीक है, हमें रिलेशनशिप पता है, हमने देखा था अभी कि
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने शॉर्ट में लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -2 और बीटा की वैल्यू है +4, ठीक है। और माइनस बी की वैल्यू क्या है, अब ये इक्वेशन में देखना है हमें। देखो इस इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1, ठीक है। ए की वैल्यू है 1। इधर बी की वैल्यू क्या है -2, सी की वैल्यू क्या है -8। देखो माइनस मैंने ऑलरेडी इधर ले लिया है। अब बी की वैल्यू क्या है -2, तो इसलिए ब्रैकेट में इधर -2 लेंगे और ये माइनस अलग। ए की वैल्यू है 1, तो माइनस प्लस माइनस 4 -2 2 और बिगर नंबर साइन प्लस, इधर माइनस माइनस प्लस मतलब +2 और नीचे के 1 को कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, तो दोनों साइड में 2 और 2 आया है, मतलब 2 इक्वल्स टू 2, हेंस वेरीफाइड। आंसर सेम आया है दोनों साइड में, हेंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, -2 और 4। सी की वैल्यू है -8 अपॉन ए मतलब 1। 4 2 8 माइनस साइन इज इक्वल टू -8। डिनोमिनेटर के 1 को कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए सिर्फ -8 इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। अब इसी तरीके से आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। मैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ क्योंकि वो ज़रा अलग टाइप का है। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। ओके, फोर्थ क्वेश्चन 4u² + 8u। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखो वी हैव 4u² + 8u इक्वल्स टू 0। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि a² + bx + c, तो इधर 4u² + 8u मतलब ax² + bx + c की वैल्यू नहीं दी है, मतलब इधर 0 होगा, ठीक है। अब इधर मैंने इसको इक्वल टू 0 लिख दिया है। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे हम, 4u और 8u में से कॉमन क्या निकलेगा, 4u निकलेगा। देखो 4u कैसे, 4u अगर मैंने 4u² में से 4u बाहर निकाला है तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ 1u रह जाएगा, मतलब 4u इंटू u 4u² प्लस 4u बाहर निकाला है और 8u आंसर चाहिए, तो 4 2 8 आता है ना, 4 2 8, तो इधर 2 आएगा। 4u इंटू 2 4 2 8 और u आंसर सेम रह गया है, सिर्फ हमने कॉमन निकाला है बाहर। अब 4u और u + 2 ये दो फैक्टर्स मिले हैं हमें, 4u को 0 से इक्वेट कर देंगे, u इधर 4 मल्टीप्लाई इधर जाके होगा डिवाइड 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर 0 ही मिलेगा, तो u की वैल्यू आई इधर 0। और इधर u + 2 भी एक फैक्टर मिला है, इसको भी 0 से इक्वेट कर देंगे, इधर +2 इधर जाके -2 बनेगा, तो u की वैल्यू आई -2। देखो इधर लिखेंगे, सो 0s are 0 and -2। वेरिफिकेशन करना है अभी। वेरिफिकेशन, अल्फ़ा की वैल्यू क्या लेंगे 0 और बीटा की वैल्यू लेंगे -2। फिर से लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इधर फिर से a की वैल्यू क्या थी, पीछे a की वैल्यू थी 4, b की वैल्यू थी 8, c की वैल्यू है 0। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी
अल्फ़ा की वैल्यू थी 0 और बीटा की वैल्यू है -2। देखो अल्फ़ा की वैल्यू थी 0 और बीटा की वैल्यू थी -2। तो 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 8 अपॉन ए की वैल्यू है 4 प्लस माइनस माइनस 0 -2 आंसर आएगा और 4 को -8 से डिवाइड करना है। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आया -2। दोनों साइड में आंसर सेम है इसलिए हेंस वेरीफाइड। सेकेंड रिलेशनशिप देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ये है 0 और -2, सी की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 4। तो 0 को अगर हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 ही आएगा और 0 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर 0 ही आएगा। 0 इज इक्वल टू 0। इधर भी आंसर सेम आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। अब फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, t² -15। सिक्स्थ वन आपको ही सॉल्व करना है, ये भी सेम मेथड से करना है, सेकेंड थर्ड जैसे। फिफ्थ वन जरा अलग है, वो मैं सॉल्व करती हूँ। t² -15। फिफ्थ क्वेश्चन t² -15। ठीक है, इसको भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। हम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c। इधर x² है पर bx की वैल्यू मिसिंग है और c की दी है, तो कैसे करेंगे? t² प्लस 0t लिखेंगे, कुछ भी नहीं है मतलब 0t, -15 जो है वो एज इट इज आएगा। इसलिए आंसर में क्या लिखेंगे? वी हैव t² -15 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आगे कैसे करना है देखो। t² और 15 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 15 को मैं √15 इंटू √15 लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों नंबर अगर रूट में दोनों भी नंबर सेम है, तो जैसे कि √15 इंटू √15 तो आंसर 15 ही आएगा। अलग एग्जांपल लेते हैं तो √13 इंटू √13 क्या आएगा? आंसर 13 ही आएगा। वैसे ही मैं 15 की जगह अब इधर √15 दो बार मतलब √15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या? यस, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो इसलिए t² -√15 का स्क्वायर, क्योंकि आंसर तो 15 ही रहने वाला है, इज इक्वल टू 0। अब ये आइडेंटिटी कौन सी है? a² -b² वाली। इधर लिखते हैं कौन सी आइडेंटिटी है? a² -b²। इसका फॉर्मूला क्या है? a + b a - b। तो इस तरीके से हमें एक्सपांड करना है। हमें a² -b² गिवन है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a की वैल्यू है t और b की वैल्यू है √15। तो इधर होगा t -√15 और t + √15 इक्वल्स टू 0। अब t -√15 को इक्वल्स टू 0 करेंगे, -√15 इधर जाके +√15 हो जाएगा और इधर t + √15 है तो इधर जाके हो जाएगा -√15। तो ये दोनों आए हैं ज़ीरोस। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए अल्फ़ा को हम पुट करेंगे √15 और बीटा को पुट करेंगे -√15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो इधर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है -15। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15। सो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब √15 प्लस और माइनस √15 इज इक्वल टू b की वैल्यू है 0 -0, a की वैल्यू है 1। √15 आएगा 0 और इधर भी आएगा 0। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू c की वैल्यू है -15, b की वैल्यू है c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू है 1।
अब √15 इंटू माइनस √15, पहले ये बताओ √15 इंटू √15 क्या आएगा, 15 ही, और माइनस साइन एज इट इज, और इधर -15, तो आंसर दोनों में भी सेम आ रहा है, इसलिए हेंस वेरीफाइड। इधर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कि जो मैंने फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ सॉल्व किए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब हम सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है जीरोस के। फर्स्ट एग्जांपल है 1/4, -1. So we have to find quadratic polynomial whose sum and product of zeros are 1/4 and -1. Sum of zeros means what? Alpha plus beta क्या गिवन है, 1/4 गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है, -1. सो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, हमें पता है c/a, और अल्फा और बीटा की वैल्यू है -1, ठीक है। फिर हम b/a जो है, इधर जो माइनस साइन है वो इधर शिफ्ट कर लेंगे, सो इधर -b का इधर हो जाएगा -1/4। अब इधर डिनोमिनेटर में 4 है, इधर भी 4 चाहिए, इसलिए हम इधर भी डिनोमिनेटर 4 कर देंगे। इधर कुछ भी नहीं मतलब 1, और डिनोमिनेटर चाहिए 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। इसलिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, c/a की, 1 4 जार 4, और माइनस साइन -4, 1 4 जार 4, -4/4। तो यहाँ से हमें जो a की वैल्यू है वो मिलेगी 4, b की वैल्यू है -1, और c की वैल्यू है -4। तो इसलिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, a की वैल्यू है 4, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ax² + bx + c, तो a की वैल्यू है 4, तो 4x² + bx मतलब b की वैल्यू है -1, तो -1 और x ना, फिर हम इधर डायरेक्टली लिखेंगे माइनस और x, b की वैल्यू 1 है पर 1 लिखते नहीं है, डायरेक्टली x लिखते हैं, प्लस -4 है c की वैल्यू, तो प्लस माइनस और c की वैल्यू 4। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x² - x - 4। अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन √2, 1/3। अब इधर भी अल्फा प्लस बीटा गिवन है √2, और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3। अगेन वी हैव टू फॉलो सेम स्टेप। क्या करना है, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, और इधर हमें √2 गिवन है, और नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, और ये गिवन है 1/3। अब इधर डिनोमिनेटर में 3 है, तो इधर भी हमें 3 चाहिए, इस साइड डिनोमिनेटर में है 3, तो इधर भी 3 करना है, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, b/a 3
इंटू रूट टू क्या होगा 3√2 और 1 3 ज़र 3 और जो माइनस बी है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में -3√2 हो जाएगा और इधर c अपॉन ए की वैल्यू निकलेगी 1/3। इधर से फिर से ए की वैल्यू है 3, इधर बी की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -3√2, बी की वैल्यू है -3√2, सी की वैल्यू क्या है 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज अगेन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ax² + bx + c इस फॉर्म में लिखना है हमें। तो a की वैल्यू है 3 तो हम लिखेंगे 3x² प्लस b की वैल्यू है -3√2x प्लस नहीं लिखेंगे तो डायरेक्टली माइनस है ना, तो फिर डायरेक्टली माइनस लिखेंगे -3√2x और c की वैल्यू है 1 तो +1। ये होगी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं 0, √5। We have to find quadratic polynomial ax² + bx + c whose zeros are alpha and beta. So we have alpha plus beta is equal to क्या दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है √5। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a मतलब 0 गिवन है तो 0 और नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5 तो √5 और नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1। दोनों में भी डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है तो सिर्फ इधर b/a और इधर माइनस साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -0/1 हो जाएगा और तो c/a इज इक्वल टू √5/1 एज इट इज। सो ए की वैल्यू क्या मिली 1, इधर ए की वैल्यू 1, इधर भी ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 मिली, बी की वैल्यू क्या है -0, सी की वैल्यू है √5। तो हमें ax² + bx + c इस फॉर्म में लिखना है। तो ए की वैल्यू है 1 मतलब 1 को तो कोई वैल्यू नहीं है तो सिर्फ हम x² लिख सकते हैं। इधर ए की वैल्यू 1 है तो सिर्फ x² लिखा तो भी चलेगा x²। अब बी की वैल्यू है -0 तो -0, बी की वैल्यू 0 -0x और सी की वैल्यू है √5 तो +√5। तो इसलिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² - 0x + √5। अब फिर से इस -0x को कुछ भी वैल्यू नहीं है तो डायरेक्टली हम लिखेंगे x² + √5। x² + √5 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो मैंने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको ये लास्ट 3 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। हमने जैसे ये फर्स्ट 3 सॉल्व किए ठीक वैसे ही ये भी 3 सॉल्व कर लेने हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड टुडेज दिस 2 एक्सरसाइज। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच।